Friends, see, let's start with motion in a vertical circle. Already you had got an idea about dynamics of circular motion. In the basics of circular motion we have learned. Friends, here let's consider a small bob of mass m. ठीक है, जैसे कि हमने किए थे, यहाँ पर एक सपोर्ट है. सो ये पेंडुलम की एक पोजीशन है. ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ए पेंडुलम. करेक्ट. एंड ये इस तरह के एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जब पूरा हम ले लेंगे. ठीक है, तो इसका मास m है. लेट इट्स मास इज m अटैच टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. स्ट्रिंग का लेंथ l है. ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है. दिस एंगल इज थीटा. लेट उसने कुछ थीटा टिल्ट हुआ और दिस इज द पोजीशन. Let this is the ground level where the potential energy is zero. Yes or no? And at this point, let the bob is moving with this velocity of the bob is let v naught. And at this point, the velocity is v. Correct. And already I had told you this is L, this is right angle triangle. So this is going to be L cos theta. And this is going to be total length is L. This length is L. Yes or no? So this is going to be L minus L cos theta. Okay. L minus L cos theta, that is taking common L whole into 1 minus cos theta. Okay, and let's balance the energy equation here. Yes or no? Total energy, change in energy between the point, let this point is A, this point is B. Correct. The total change in energy between point A and point B, means at point A and B we can say the change in kinetic energy plus the change in potential energy is going to be zero, because if kinetic energy will be increasing, then potential energy will be decreasing. If potential energy will be increasing, then kinetic energy at the main position, kinetic energy is maximum, and the main position, the potential energy is minimum. And for this situation, if this is the kinematics, if this is the extreme position, then here kinetic energy is minimum and potential energy is maximum, isn't it? तो चलो बैलेंस करते हैं इक्वेशन को. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, सो दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर. करेक्ट. प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg l होल इनटू 1 minus cos theta, because here potential energy was not there, but here potential energy is there. So mgl 1 minus cos theta is equal to 0. Understood? Next, let's solve taking all m common and taking v half common. Yes or no? You can find by solving. V square is going to be v naught square minus 2gl whole into 1 minus cos theta. By solving all, by cancelling the all and taking the 2 common and multiplying that side, you can get v square is equal to this much. Then velocity at any point is equal to v naught square minus 2gl into 1 minus cos theta, and then the root over of that. Understood? So this is the case of velocity at any point when it is tilted by some angle theta. Okay, understood? And so when a body is moving in a circular motion, there is a tangential acceleration and there is a acceleration, that is centripetal acceleration. In this direction, the tangential and centripetal acceleration always are away. So we can say for tangential acceleration at any position, क्योंकि ये जब pendulum जब घूम जाएगा तो पूरा एक vertical circular वाला motion cover करेगा ना. So this is the part of a vertical circular motion, and from the small part only we can analyze the whole scenario. ठीक है, तो चलो देखते हैं for tangential acceleration at any point, right? For tangential acceleration at any point, at any position on vertical circle, that is at is equal to mat is equal to how much, which brings it tangential, because if I'll be analyzing here, you can see here mg is downward, so this is theta. If this is theta, this is going to be theta, and this component is mg cos theta, and tangential, which force tried to bring it, mg sin theta, isn't it? So that net force mat is equal to how much, mg sin theta.
correct? So finally you can get AT, tangential acceleration, is equal to how much? G sin theta, na students? Okay or not? Then centripetal or normal acceleration, we can say also sometimes is normal acceleration or centripetal acceleration. So that is equal to mass into centripetal acceleration is equal to how much? M velocity v square by radius mv square by r, और यहाँ पर radius कितना है? यहाँ पर radius जो है that is length of the string is the radius, correct? तो इसलिए radius की जगह पे हमने L ले लिए, तो you can write here mv square L square by L, correct? So then अगर हम m को cancel कर दे तो an is going to be how much? C v square by L, correct? एंड ऑलरेडी आपको v स्क्वायर मिल गया है प्रीवियस इक्वेशन में, आप यहाँ पर देख सकते हो v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये वाला इक्वेशन, करेक्ट? तो इसको पुट करके हम लिख सकते हैं a नॉट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस, क्योंकि v स्क्वायर है ऑलरेडी रूट अंडर हट जाएगा, सो 2gl होल इंटू 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय l, ओके? So this is going to be the normal acceleration for this part, okay? स्टूडेंट्स लेट हम चाहते हैं कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट डिसाइड कर दे थीटा की टर्म्स पे कि कौन सा पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा, राइट? लेट कोई भी एक एंगल पे, लेट कोई भी एक एंगल पे मान के चलो थीटा इज इक्वल टू अल्फा में द वेलोसिटी v इज जीरो, मतलब लेट एट कोई भी एक एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा में, लेट दैट इज अल्फा एट व्हिच इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो चलो एक केस बनाते हैं जो कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने v नॉट दिया था, दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट गिवन, कोई भी एक पॉइंट पे मान के चलो ये वेलोसिटी जो है ना वो जीरो हो जाता है। तो लेट्स गो टू दैट, लेट द एंगुलर एम्पलीट्यूड, राइट, let the angular amplitude be theta is equal to alpha at which its velocity becomes zero. So कैसे निकालेंगे? How to find that alpha? for कौन सा value of alpha और theta the velocity will become zero? That means v के जगह में zero put कर देते हैं, that is equal to how much? v naught square minus 2gl whole into 1 minus cos alpha का root over, correct है कि नहीं? तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? बोथ साइड स्क्वायरिंग करके v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl cos alpha is equal to 0. Then cos alpha is going to be how much? See 2gl minus v naught square by 2gl, correct? Yes or no? Understood? This is the thing. Getting or not student? इस एंगल के लिए अगर मैं यहाँ पर मुझे जीरो बनाना है तो कौन सा एक्सप्रेशन होगा? 2gl minus v naught by 2gl, करेक्ट? इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं। अभी मैं थोड़ा टेंशन की तरफ जाता हूँ, ऑलरेडी ये सारी चीज हम थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, just you go through the notes today and try to know. If you're not able to understand then very next class you just ask me which part we're having doubt. let हम टेंशन की बात करते हैं स्टूडेंट। so this is tension, अगर ये थीटा हो गया, लेंथ इज एल, यू ऑलवेज नो mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस तरफ जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज थीटा, mg का जो कंपोनेंट है दैट इज mg cos थीटा, और इस तरफ का जो कंपोनेंट है वो mg sin थीटा है ना? है कि नहीं? एंड स्टूडेंट हियर यू कैन सी अगर टेंशन ऊपर की तरफ है और mg cos थीटा नीचे की तरफ है, और बॉडी एक सेंट्रीपिटल फिगल फोर्स जो है वो किस तरफ एक्ट कर रहा है? अंदर की तरफ हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? mv स्क्वायर बाय r। तो हम यहाँ पर इक्वेट करके लिख सकते हैं t इस तरफ माइनस mg cos थीटा, दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है? mv स्क्वायर बाय l, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाय r, और यहाँ पर रेडियस l है। सो टेंशन कितना हो गया यहाँ पर? टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l, है ना? यस सर नो? तो यहाँ पर जो v स्क्वायर है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, v स्क्वायर का वैल्यू पुट करके, राइट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v from equation, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v, मतलब v का वैल्यू हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये जो वैल्यू हमने हमें मिला v का, दिस वैल्यू, मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हो वी कैन गेट t is equal to, I'll get it like that, mv naught square by l minus 2 mg
प्लस 3mg cos थीटा। यू कैन चेक इट बाय अप्लाइंग, ठीक है, अंडरस्टूड। और अगर हम मानते हैं कि कोई भी एक एंगल पे, दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर टेंशन, ठीक है, और मान के चलो स्टूडेंट्स कोई भी एक केस में, एट एनी केस वी वांट टू फाइंड दैट द टेंशन इज इक्वल टू 0। टेंशन 0 होगा जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू कहीं पे फाई लेके चलते हैं, तो टेंशन 0 हो जाएगा, मतलब दैट इज हाउ मच, m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय l माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, है ना। तो इसको अगर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्लास मल्टीप्लाई करके, तो हम ये मिल सकते हैं v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl cos phi is equal to 0. So finally cos phi is equal to how much? 2gl minus v naught square divided by 3gl. This is the case for cos phi. और इससे पहले हमने इसका भी एक टर्म्स निकाले थे cos अल्फा में, वेलोसिटी जीरो करने के लिए और टेंशन को जीरो करने के लिए, ठीक है। जस्ट इतना ही सारे बेसिक केसेस है, just to go through these cases, and if you are having doubt just ask me very next class. देखो थोड़ा और एक केस बताता हूँ, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल, मतलब क्या होना चाहिए कंडीशन, कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल, कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल, ठीक है। क्या कंडीशन होना चाहिए वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, राइट, यहाँ पर, तो इसको तो या इस पॉइंट से ऊपर जाने के लिए हमें तो वी नॉट देना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह हमने उसको इस पॉइंट तक पहुंचा दिए, फिर भी यहाँ पर अगर वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो ये तो नीचे की तरफ आ जाएगा ना। तो इसलिए यहीं पे कुछ वेलोसिटी होना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द वेलोसिटी एट द टॉप, ये हमें निकालना होगा। चलो और एक बात फ्रेंड, जब टॉप में है, अगर ये स्ट्रिंग की बात करूं तो टेंशन भी नीचे की तरफ और वेट भी नीचे की तरफ, राइट। और बाहर की तरफ क्या लगेगा, अगर वेलोसिटी v टॉप कुछ पर्टिकुलर होता है mv स्क्वायर v टॉप का स्क्वायर बाय l, l मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो उसको अगर मैं इक्वेशन में फॉर्म करूं तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, टेंशन एट टॉप प्लस mg शुड बी इक्वल टू m v टॉप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, करेक्ट। इस तरह की इक्वेशन लिख सकता हूं ना, जनरल इक्वेशन है कि नहीं। और स्टूडेंट ये टेंशन में अगर ऊपर में अगर टेंशन 0 हो गया तो ये तो नीचे गिर जाएगा ना, बट फॉर लूपिंग मतलब पूरा लूप कंप्लीट करने के लिए, राइट, फॉर लूपिंग पूरा वो वर्टिकल सर्कल में मूव करने के लिए, फॉर लूपिंग द लूप बोलते हैं उसको, पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए टेंशन एट द टॉप पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट है कि नहीं। और अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो मुझे देखो m, ये जो हमें मिला इक्वेशन m भी टॉप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, है ना। अगर m कैंसिल कर देते हैं तो वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू gl, करेक्ट, m कैंसिल कर दिया हमने। सो वेलोसिटी एट द टॉप शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर ऑफ gl। तो ये एक कंडीशन मिल गया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतना वेलोसिटी होना चाहिए g इंटू एल का रूट ओवर, सो दैट कंडीशन मतलब लूपिंग द लूप हो जाएगा, ठीक है। And student, ये हो गया मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द टॉप मोस्ट पोजीशन टू कंप्लीट द सर्कल। कंप्लीट द सर्कल मतलब सर्कल मतलब जो लेंथ लिखा हूं स्ट्रिंग का, वो लेंथ एयर आर में रिप्लेस हो जाएगा, राइट। सो थोड़ा लिख दो यहीं पे, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, मतलब दैट इज मिनिमम वेलोसिटी, अगर क्वेश्चन पे आया मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, राइट, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, एट द टॉप मोस्ट पोजीशन to complete the circle, to complete the circle is gr root over, correct, where r is radius of the circle, इसको याद रखो, where r is radius of the circle, r is radius of the circle, okay। and student टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो थीटा कितना है, 180 डिग्री है ना, है कि नहीं। मोस्ट पॉइंट जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा को मैं 180 डाल दूं तो तभी भी v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ gl, आप देख सकते हो। एंड v इज इक्वल टू gl, मतलब इसको अगर डालेंगे
तो GL का रूट ओवर विल बी इक्वल टू हाउ मच, V स्क्वायर जो लिए थे कितना, V नॉट का स्क्वायर माइनस 2GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये डिराइव किया था ना स्टूडेंट्स, किया था कि नहीं, और बोथ साइड में स्क्वायर कर दो, GL इज इक्वल टू हाउ मच, V नॉट स्क्वायर माइनस 2GL होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ठीक है, V नॉट का स्क्वायर माइनस 2GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ठीक है, ये GL है। स्टूडेंट अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बोथ साइड में अगर वी स्क्वायर को एक साइड पे ले जाऊं, जीएल को दूसरी साइड पे ले जाऊं, ठीक है, और यहाँ पर हम सॉल्व करके देख सकते हैं, मतलब cos थीटा को अगर 180 डाल दूं, 180 कितना हो जाएगा, 2GL 1 माइनस ऑफ -1 है कि नहीं, सो दैट इज GL इज इक्वल टू हाउ मच, V नॉट स्क्वायर माइनस 4GL, है ना। सो अगर कंडीशन की बात करूं तो V नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4GL है, उस तरफ आके 5GL, तो 5GL का रूट अंडर, तो V नॉट जो है तो मिनिमम पे कितना वेलोसिटी होना चाहिए एट द मिनिमम पॉइंट, ठीक है, एट द मिनिमम पॉइंट पे कितना होना चाहिए। सो फाइनली अगर मैं एक सर्कल बना दूं, ठीक है, तो पूरा लूप करने के लिए स्टूडेंट मैं बहुत साइड के केस की बात कर रहा हूँ, अगर ए पॉइंट की बात यहाँ पर करता हूँ और बी पॉइंट की बात यहाँ करता हूँ, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए मिनिमम ऊपर जाने के लिए, 5GL ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लूपिंग द लूप कंप्लीट करने के लिए कितना होना चाहिए, V इज इक्वल टू रूट अंडर GL होना चाहिए, करेक्ट, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स, है कि नहीं। Yes. आप इसी को एनर्जी बैलेंस की मेथड पे भी निकाल सकते हो, तो लोएस्ट वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट कितना होना चाहिए, रूट ओवर 5GL, या फिर हम बोल सकते हैं 5GR, अगर सर्कल की टर्म्स पे रेडियस R ले लेंगे, सो V नॉट वी कैन से रूट ओवर ऑफ 5GR, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, रूट ओवर ऑफ GR और GL,